Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 23 and name of the chapter is The Land of India. The land of India. Now see student, let do little recapitulation what we have done in our previous videos. So student, in the previous video I explained you different physical divisions of India, that is Himalayas range. And when we are talking about the Himalaya range, then student, we discuss three parallel ranges of the Himalayas, that is Himadri, or you can also say Greater Himalayas. Next is Himachal, or you can also say Middle Himalayas. Then third parallel range of Himalayas is Shivalik, and you can say Outer Himalayas also. So after that, Northern Plains we have discussed. What are the importance of Northern Plains? This I explained you in my previous video. After that, the another physical division, that is the desert region of India, I explained you. The next physical division which I explained you, that is the Southern Plateau. And next physical division which I explained you is the Coastal Plains. Okay, now let's start with another physical division, that is the island region. Okay, so student, when we are talking about the island, ठीक है, तो first of all understand why we say this physical division as a island. So this is the part of the land which is surrounded by water from all side. ठीक है बेटा, ये जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है जो पानी के बीचों बीच होता है. ठीक है, ये जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है बेटा जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच होता है. ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर ही वाटर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड. जब मैंने पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में बताया था, वहाँ पे आई एक्सप्लेन यू दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ईस्ट में बताया था बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन है. लेकिन आइलैंड इन्हें इसलिए बोलते हैं, ये ऐसी फिजिकल डिवीजन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लैंड which is surrounded by water all sides. ओके, अब देखो, अब ये जो अब ये आइलैंड्स कहाँ पे हैं इंडिया में, तो एक आइलैंड आपके ईस्ट वाले पोर्शन में है और एक आइलैंड आपके वेस्ट वाले पोर्शन में है. ओके, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ Bengal. Is it clear? And what is in the west? West में क्या है, अरेबियन सी.
Aravian, Arabian Sea. So east, in the east we have Bay of Bengal and in the west we have Arabian Sea. West में क्या है बेटा? Arabian Sea किसमें है? Arabian Sea is in the west. So now student, Andaman, Andaman, A-N-D-A, Andaman and Nicobar, Nicobar Island, Andaman and Nicobar Island is islands are Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal. Is it clear? ठीक है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल था, वेस्ट में अरेबियन सी था. नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बेटा, दीज आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में. इज इट क्लियर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ आपको मिलेंगे? बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे. ठीक है. And if you want to note down what is the capital of Andaman Nicobar Island, so you can write their capital is Port Blair. Port Blair is the capital of Andaman Nicobar Island. Port Blair. Port Blair. Port Blair is the capital of Andaman Nicobar. And how many group of islands are there in Andaman Nicobar Island? 300. ठीक है, लगभग 300 आइलैंड्स हैं ये. इज इट क्लियर? देयर आर ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दीज आइलैंड आर हिली एंड कवर्ड विद फॉरेस्ट. ये क्या है? यहाँ पे हिल्स हैं. जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे आपको हिल्स क्या होता है? माउंटेन्स से छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. माउंटेन्स और हिल एक ही जैसे होते हैं, दोनों ही ऊंचे होते हैं और दोनों की पीक होती है, लेकिन माउंटेन्स की बहुत ज़्यादा हाइट होती है और जो ये हिल्स होते हैं ना, ये स्मॉल इन साइज होते हैं. यही डिफरेंस है माउंटेन्स और हिल्स में. तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, लगभग 300 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और यहाँ पे आपको क्या, ये किस चीज़ से कवर्ड है? दीज आर कवर्ड विद द हिल्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, हिल्स और फॉरेस्ट है. यहाँ पे किससे कवर्ड है? हिल से और फॉरेस्ट से ये कवर्ड है. इज इट क्लियर? एंड आउट ऑफ 300 आइलैंड्स, दीज थिंग्स आर नॉट गिवन इन द बुक. ये बुक में नहीं दी है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नोट कर सकते हो. ठीक है, दीज थिंग्स आर नॉट गिवन इन द बुक. ठीक है, out of 300 islands, 38 islands are inhabited. So 38 islands are inhabited. What does it means? इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन है. 300 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ अंडमान निकोबार में, जिसमें से 38 ही आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं आउट ऑफ
300, ठीक है। ओनली 38 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? ट्राइबल्स ग्रुप्स के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, ठीक है। यहाँ कौन रहते हैं बेटा? ट्राइबल ग्रुप्स के लोग, ठीक है। सो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिवासी। जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार इसकी रिकैप्चुलेशन कर लो, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। देखो, हमने पढ़ा आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बेटा? आइलैंड क्या है? वेयर दिस इज द लैंड विच इज सराउंडेड बाई, ये जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। द पीस ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। पानी के बीचों बीच जमीन का टुकड़ा। अब जब हम अपने इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो ये आइलैंड्स क्या हैं? बे ऑफ बंगाल में भी है, जो कि ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन है, और ये अरेबियन सी में भी है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया बे ऑफ बंगाल में, विच इज द आइलैंड फाउंड इन बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या सिचुएटेड है? ये यहाँ है, ठीक है। अब देखो, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? तो सो द नेम ऑफ द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इनकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। इज इट क्लियर? और कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ? 300, ठीक है, 300 आइलैंड्स। इतने ज़्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन आउट ऑफ 300 ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड्स पे लोग नहीं बसे हुए हैं। आउट ऑफ 300 ओनली 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को ट्राइबल्स कहते हैं। ट्राइबल्स मीन्स जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। सो ये डिस्कस कर लिया। अब लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो द आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड। अब हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अब जब बेटा हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे तो दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। ये लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? दे आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। दे आर, ये लक्षद्वीप आइलैंड बेटा आपके कहाँ हैं? दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। और अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में। जैसे बे ऑफ बंगाल किसमें था? ईस्ट में था। तो आपकी अरेबियन सी कहाँ आई बेटा? वेस्ट में आई, ठीक है। तो दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ द केरला। और दीज आइलैंड आर अबाउट 36 इन नंबर। वो अंडमान निकोबार में ज़्यादा थे, वहाँ 300 ग्रुप थे लगभग आइलैंड के, और उसमें से 38 इन्हेबिटेड थे। दीज आर 36 इन नंबर। ये कितने हैं? 36 हैं। नेक्स्ट, दीज आर 36 इन नंबर। फिर है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर कैपिटल। हाँ, यस,
capital is Kavati, Kavati. This is the capital of Lakshadweep Island. And these islands, which are generally flat, are well known for the coral deposit. These islands are well known for the coral deposit. Well known for the coral deposits. ठीक है. अब देखो अब तुम लोग सोचोगे व्हाट इज ए कोरल डिपॉजिट. ठीक है. सो नोट डाउन कोरल आर टाइनी सी creatures. Coral are tiny sea creatures with a hard body covering. आपने अब बुक में ऐसे डायरेक्टली क्या दिखाऊं, आपने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा है समुद्र के नीचे का. ठीक है. समुद्र के नीचे का देखोगे कोरल रिलीफ्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं. ठीक है. और ये अदर एनिमल्स छोटी फिश हैं, ये सबके होम्स भी होते हैं. ठीक है. ये क्या है बेटा, कोरल्स आर टाइनी सी क्रिएचर. ये भी समुद्र में पाए जाने वाला है. ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. ये बहुत छोटे साइज का होता है. और क्या कह रहे हैं, क्रिएचर विद द हार्ड बॉडी कवरिंग. इसकी जो बॉडी की कवरिंग जो होती है शेल, वो बहुत हार्ड होता है. जैसे आप लोगों ने टॉर्टोइस के बारे में सुना होगा, उसका जो आउटर बॉडी कवरिंग जो शेल जो होता है बहुत हार्ड होता है. कछुए का सुना है ना, कछुए का जो बाहर जो उसकी बैक होती है, वो जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है. तो ये भी एक सी क्रिएचर है जो कि सी में होता है. ठीक है. और इसकी जो बॉडी का जो कवरिंग है, जो शेल है, ये भी बहुत हार्ड होता है. ठीक है. तो ये जो कोरल्स हैं जो आपको सी में मिलेंगे, इनकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. ये ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे अपनी सारी ज़िंदगी वो कर देते हैं. और जहाँ एक कोरल मर जाता है, उसी के ऊपर दूसरा कोरल घर बना लेता है. ठीक है. और जो उनकी जो शेल है, यही एक के ऊपर सेटल होते जाते हैं, जमते जाते हैं. तो ये इस तरह का कोरल रिलीफ्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे ये लक्षद्वीप आइलैंड में. ठीक है. लक्षद्वीप आइलैंड इज फेमस फॉर द कोरल रिलीफ्स. सो कोरल डिपॉजिट, इसीलिए इसको बोला भी गया कोरल डिपॉजिट, क्योंकि जो ये जो एनिमल है ना बेटा, क्या बोला है, सी क्रिएचर विद ए हार्ड बॉडी कवरिंग. जिसकी जो बॉडी की कवरिंग है वो बहुत हार्ड होती है. जब ये एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके जो बॉडी जो शेल है, वही एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाता है. इसी से कोरल्स बनते हैं. ठीक है. सो यही है कोरल रिलीफ का, कोरल डिपॉजिट इसी को बोलते हैं. अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें. ठीक है. मैनी पोर्ट्स आर फाउंड ड्यूरिंग द कोस्ट, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड. अब देखो ये कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के क्या फ़ायदे हैं. ठीक है. आप लोग जानते हो बेटा, जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार, ठीक है, जितना भी ट्रेड होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो सबसे ज़्यादा वाटर वेज से होता है. इवन स्टूडेंट, आपने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि बहुत से एक्सप्लोरर थे जिन्होंने दुनिया के नए नए देशों की खोज की. तो हाउ दे डू दिस बाय द वाटर वेज. पहली बार जो देखो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए थे, तो वो किस रास्ते से आए थे, वाटर वेज से आए थे. इज इट क्लियर. वो किस रास्ते से आए थे, वाटर से आए थे.
और सबसे ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जो गुड्स कैरी होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, वो सारा किससे होता है? वाटर वेज से ही होता है। ठीक है, तो ट्रेड के लिए ये आपके कोस्टल लाइंस और आइलैंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। मैक्सिमम जितना भी ट्रेडिंग का काम होता है दैट इज थ्रू द वाटर वेज। एंड अनदर इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। ठीक है, तो टूरिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम द अदर कंट्री आल्सो विजिट टू सी दीज आइलैंड्स। ठीक है, तो मतलब इंडिया के अदर पार्ट से भी कह लो और फॉरेन से भी बहुत टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कहाँ पे? इन आइलैंड्स पे आते हैं। और व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल? ऑक्यूपेशन होता है बेटा काम धंधा। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होता है? काम धंधा होता है। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का क्या है? फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। और इस आइलैंड्स आर आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये आइलैंड्स। इन आइलैंड्स पे हर साल बहुत से लोग जाते हैं बेटा घूमने। तो तुम लोग को मैंने आज सारी फिजिकल डिविजन्स, हिमालयंस रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया दैट इज थार डेजर्ट, आफ्टर दैट सॉर्दर्न प्लेट्यूज हो गया। आफ्टर सॉर्दर्न प्लेट्यूज मैंने आप लोगों को कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया बता दिए। और नाउ द लास्ट 6th डिवीजन ऑफ इंडिया दैट इज आइलैंड। सो सारे फिजिकल डिवीजन बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए। यू वॉच द वीडियोज फ्रॉम योर स्कूल चैनल एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन related to this topic you can ask your doubt in online doubt section। ठीक है, ऑनलाइन डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स पूछ लोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब कीवर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 134। सब कोई 134 पेज ओपन करो और लेट स्टार्ट विद द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, पहला है बेटा कीवर्ड फिजिकल डिवीजन। सो अब फिजिकल डिवीजन आई होप अब सबको बिल्कुल इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, जब हम लोग को पता है वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम सबको पता है वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। So the question arises that land on the surface of the earth is same. So answer is no. Somewhere the land is having mountains, some part it has hills, कहीं पे desert है, some part is covered with the plains, is it clear? And some part we see plateaus and some part it is covered by the वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सी, ओशंस। तो इन्हीं को जो हम पढ़ते हैं, मतलब ये जो अलग अलग लैंड फॉर्म है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। इसी को हमने क्या बोला बेटा? इसी को हमने बोला फिजिकल डिवीजन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डिवीजन, सो देयर आर 6 फिजिकल डिविजन्स। There are 6 physical divisions। कितनी फिजिकल डिवीजन है? 6 फिजिकल डिवीजन। नेक्स्ट है बेटा रेंज। रेंज अ रो ऑफ माउंटेन्स और हिल। जैसे हिमालयंस रेंज, तो ये जो कितने पार्ट्स में है? इसकी 3 पैरेलल रेंजेस है जो साथ साथ चल रही हैं। दैट इज द हिमाद्री, हिमाचल, और यू कैन से मिडल हिमालयस और शिवालिक, और यू कैन से आउटर हिमालयस। ठीक है, ग्लेशियर
ए लार्ज मास ऑफ ए आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन ए माउंटेन वैली। ठीक है, अब ग्लेशियर क्या होते हैं बेटा, ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिमाद्री रेंज में बताया था ये पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं और हमेशा बर्फ से ढके होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। हिम मतलब बर्फ होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट ऑल द ईयर दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो एंड विद द मेल्टिंग ऑफ दीज स्नो, और ग्लेशियर इन्हीं को कहते हैं बड़े बड़े जो स्नो के जो पीसीज होते हैं, और इनके मेल्ट होने से ही कई रिवर्स फॉर्म्स हुई हैं, एंड दैट रिवर्स आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स। इन्हें पेरिनियल रिवर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उनमें वाटर पूरे ईयर रहता है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब देखो, ग्लेशियर हो गया टिम्बर, वुड डैट वी यूज फॉर बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स। ठीक है, इमारती लकड़ी, तो इसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है। द वुड इज यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स एंड मैनी अदर थिंग्स। एलुवियल प्लेन, लैंड फॉर्म ऑफ ए सॉइल लेफ्ट बाई रिवर्स। एलुवियल प्लेन बेटा, इन्हें एलुवियल प्लेन क्योंकि ये लैंड उससे बना है जो सॉइल कौन लेफ्ट करके जा रहा है, रिवर्स, क्योंकि व्हेन द रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स दे कैरी लॉट ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड सिल्ट सॉइल, जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ों की मिट्टी। तो उस समय रिवर जब फ्लो करते हुए आती है प्लेन्स में, तो बहुत से सॉइल को कैरी करके लाती है, और ये कहाँ डिपॉजिट इसको कर देती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, और दैट इज द रीजन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। यही रीजन है कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया फर्टाइल, वेयर प्लांट्स ग्रो वेल। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, देखो बेटा, जहाँ पे मिनरल रिच सॉइल होगी, जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिस सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल कहाँ कौन लेके आता है, रिवर्स लेके आती है। व्हेन दे आर फ्लो फ्रॉम, व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, तो ये अपने साथ इस सॉइल को लेके आती हैं। ठीक है, तो अगर सॉइल में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होंगे, सॉइल मिनरल रिच होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुत फर्टाइल है, मतलब सॉइल क्या है, बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, सो एंड दिस टाइप ऑफ ए सॉइल इज वेरी गुड। ठीक है, इस तरह की जो सॉइल होती है बेटा, दिस टाइप ऑफ ए सॉइल इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी होती है, प्लांट्स की और क्रॉप्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टाइल। फर्टाइल सॉइल मीन्स वेयर प्लांट ग्रो वेल। थिंग्स टू रिमेंबर, फर्स्ट आ जाओ, इंडिया हैज़, इंडिया बुक इट इज़ गिवन 29, लेकिन आप नया अभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें चेंजेस आ गई हैं, और अब क्या हो गई हैं, 28 स्टेट्स हो गई हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजिकल जियोग्राफिकल रीजन। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं आप लोगों के संग। एक थी हिमालयन रेंज, फिर आपके थे नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपके थे डेजर्ट रीजन, देन सॉर्दर्न प्लेट्यूज, देन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, and the last physical division which I have already discussed with you is the island। आइलैंड कहाँ के, इंडिया के आइलैंड्स। ओके, जिसमें आपके ईस्ट में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, और वो किस में है, बे ऑफ बंगाल में है, और अरेबियन सी किस तरफ है, वेस्ट में है, और इसमें कौन सा आइलैंड है, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड इज इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड इज इन अरेबियन सी। सो इन द नॉर्थ आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स। देखो, अगर आप लोग मैप की डायरेक्शन देखते हैं तो हमेशा टॉप डायरेक्शन नॉर्थ की होती है, तो नॉर्थ में मैक्सिमम जो सबसे हाइट वाले जो माउंटेन्स है आपकी नॉर्थ है डायरेक्शन जो है, वहाँ क्या है,
मैक्सिमम माउंटेन्स हैं. Is it clear? Okay, thank you student. We will continue the topic in the next video.